Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present the second video of the provisions of Constitution of India. And in this video I will classify and describe the history of Article 368. मित्रों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 368 के इतिहास पर और इसके विभिन्न 5 खंडों के वर्गीकरण पर चर्चा की जाएगी. You know that there are 5 clauses in Article 368, but till the Articles 368 have been amended 2 times. First, it has been amended through the 24th Amendment Act 1971, and just within 5 years by the same Lok Sabha, by the same government. In 1976, 42nd Amendment. You have to note here. मित्रों, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक ही लोकसभा ने यहाँ 24वां संशोधन भी किया और 42वां भी किया. आप सोच लीजिए कि उस 5 साल के कार्यकाल में संविधान में कितने बदलाव किए गए थे. इट वॉज रूल ऑफ इंदिरा गांधी. जबकि ये पहला नहीं है, इससे पहले भी शायद इसी गवर्नमेंट में कुछ हुआ हो. बट 24th and then just change the digit 244. There is an interesting matching between the both amendments. The digits are same, 2 and 4, 4 and 2. The 24th Amendment and 42nd Amendment. First is in 1971 and the second is in 1976. Before the first amendment in Article 368, that is 24th Amendment Act 1971, there were no clauses in Article 368. It means till the Amendment Act 1971 came in force, there were no clauses in Article 368, just single paragraph. Now which is shifted into clause 2 of Article 368. So why I have mentioned the original text. मित्रों, एक 24वें संविधान संशोधन तक अनुच्छेद 368 में कोई खंड नहीं था और इसकी जो बातें थी वो आज अनुच्छेद 368 खंड 2 में ज्यों की त्यों लिखी है. यानी ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसमें कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुआ है. And what has been provided originally in Article 368? You can know through the reading of Article 368 clause 2, and it is the procedure of amendment in Constitution. ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है. Which is generally are 2 types, with special majority of Parliament and with special majority by special majority of Parliament and by special majority of Parliament with ratification of मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, जो प्रोविजो में लिखा हुआ है, जिसको मैंने पहली वीडियो में बता दिया आपको. यानी यहाँ प्रोसीजर 2 तरह का है. ये ओरिजिनल है. अब कम टू नो द हिस्ट्री दैट्स व्हाई द 4 clauses have been inserted one by one. Clause 1 and 3 have been inserted by the first amendment made in the Article 368. It was 24th Amendment. अनुच्छेद 368 में जो पहला संशोधन किया गया, जो कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के जरिए किया गया, इसके जरिए 2 क्लॉजेज इंसर्ट किए गए. यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उससे एक क्लॉज पहले जोड़ा गया और उसके एक बाद में जोड़ा गया. एंड ओरिजिनल क्लॉज हैज बीन कैटेगराइज्ड एज मार्क्ड एज क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल. जो मूल खंड था उसे उपखंड 2 में शिफ्ट कर दिया गया और क्लास 1 में भी एक बात जोड़ी गई, क्लास 3 में भी एक बात जोड़ी गई. Why it has been inserted? Here I have mentioned to overrule the effect of Golaknath's case 1968 given by Supreme Court. सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ में फैसला दिया था उसको ओवररूल करने के लिए ये 2 बातें जोड़ी गई. ठीक है, अब मैं आगे इसको डिक्टेट करूंगा कि गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि उसको ओवररूल करने की जरूरत पड़ी. Later on, okay,
So let yourself understand the stages. 1968, the first stage, to overrule this, the amendment has been done in 1971. The second step, then it has been 1976, so it is not third step. The third step is 1973 Kesavanand Bharati case. The judgment of Kesavanand Bharati case given by Supreme Court has been overruled through the 42nd Amendment Act 1976. And then after the last stage, Article 368 Clause 4 and 5, which have been inserted through 42nd Amendment 1976, have been declared unconstitutional in the Minerva Mills case 1980. That is the last stage. So right now, though there were 5 clauses appear seen in Article 368, but actually Clause 4 and 5 are unconstitutional. These are not effective. ठीक है? अनुच्छेद 368 खंड 5, 4 और 5 असंवैधानिक है। अब अगली बात में फिर लौटते हैं, फिर से जरा समझिए। अगली बात कैटेगराइज करते हैं। I have categorized the 5 clauses into 3 groups. 368(2), I have mentioned here procedure amendment. Then what have been provided in clause 2, clause 1 and clause 3, on which basis I have classified the 2 in a joint venture? इस आधार पर इनको एक साथ लिखे हुए हैं। In the both clauses, power and supremacy of Parliament to amend the Constitution have been provided. Here, power and supremacy of power of Parliament to amend the Constitution have been explained by way of Article 368 Clause 1. ठीक है? And through this, the judgment, the view of Supreme Court given in Golaknath's case have been overruled. इसको इंसर्ट करके गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि संसद को केवल प्रक्रिया है, पावर नहीं है संविधान में संशोधन करने का, 368 में सुप्रीम कोर्ट के इस बात को ओवररूल किया गया इसके। और 3 में क्या कहा गया? थ्रू क्लॉज 3, सुप्रीमेसी ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गिवन ओवर द फंडामेंटल राइट्स, कि संविधान में संशोधन करके संसद जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसको यहां एक्सप्लेन किया गया। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ इंसर्शन ऑफ क्लॉज 1 इन आर्टिकल 368 एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन which is dominant over the provisions of fundamental right to liberty to the citizens and a person living in India have been explained in clause 3 of Article 368. 368 खंड 3 में लिखा गया कि संविधान संशोधन करके कुछ भी किया जा सकता है और उस कुछ भी किए जाने में मूल अधिकारों को भी बदला जा सकता है। The amendment made by Parliament through 24th Amendment Act 1971 was approved by Supreme Court in Kesavanand Bharati's case 1973. But though Supreme Court admitted that the power of amendment in Constitution is vested in Parliament and there is no formal restriction on the power of Parliament to amend the Constitution. But even though Parliament cannot be allowed to disturb the basic structure of Constitution, and what is the basic structure of Constitution? It should be decided by the court time to time. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि अपने ही जजमेंट को ओवररूल जो किया जाने वाला संशोधन था उसको मान्यता तो दे दिया और कहा कि ये बात सही है कि ये मान्यता मिली, सर ये इनको पावर है, पार्लियामेंट को ही पावर है संशोधन करने का, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। बट इट डजंट मीन दैट पार्लियामेंट में इरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑन द नेम ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑन द नेम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की शर्त के नाम पर, लेकिन संसद संविधान को बर्बाद नहीं कर सकती है, वो संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो ये आधारभूत ढांचा का प्रतिबंध लगा दिया गया केशवानंद भारती केस में, which have been overruled by 40th Amendment, Second Amendment Act 1976। इसको ओवररूल करने के लिए 42nd Amendment Act लाया गया, and through it class 4 and 5 have been inserted। क्या लिखा गया? What vulgar language has been used। कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। दुर्भाग्य है कि आज तक इस पे संसद को शर्मिंदगी नहीं आती। उसने क्या किया था? As an institution, Parliament of India should say sorry to the nation। उनको इसमें तो सॉरी बोलना चाहिए और इसे फिर से डिलीट करना चाहिए। Otherwise, if you are not agree with me, please do read the clauses। You will understand that why I am claiming so, I am demanding so। तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी मांग क्यों कर रहा हूं। What an illogical and dictative language have been used in the clauses। Read it with me। मेरे साथ आप इनको पढ़ेंगे। Clause 4, no amendment of this constitution including the provisions of part 3 यानी fundamental right made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of section 55 of the constitution 42nd Amendment Act। केशवानंद भारती के केस में जो बात कही गई 42nd Amendment Act shall be called in the question in any court of any on any record। तो केशवानंद भारती केस में जो बात कही गई उसको ओवररूल करने के लिए क्या किया गया? क्लास 4 जोड़ा गया। और क्लास 4 लिख के क्या जोड़ा गया कि हम जो 1976 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको किसी भी ग्राउंड पे कोर्ट में चेक नहीं किया जाएगा। जबकि केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एन अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट माइट बी reviewed by Supreme Court on the basis of basic structure of Constitution। इसमें कहा था संविधान के आधारभूत ढांचे के नाम पर, की रक्षा के नाम पर, की रक्षा के लिए हम किए गए संशोधनों को भी परखेंगे कि ये संशोधन कहीं संविधान को बिगाड़ने के लिए नहीं किए गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी किए हैं इस पर कहीं कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। Shall be called in question in any court on any ground। और किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर संगत नहीं किया जाएगा। यानी कुछ भी कर देंगे तो जनता के पास एक ही ऑप्शन है, सड़क पे आ जाए, अगर इनसे सहमत नहीं है तो। अदरवाइज और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। एंड व्हाट हैव बीन इंसर्टेड इन क्लास 5th फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this constitution under this article। संविधान में किसी बात के होते हुए भी ये सभी संदेहों को दूर करने के लिए लिखा जा रहा है। इसमें लिखा गया क्लास 5 में कि किसी भी आधार पर संसद की जो संविधान में संशोधन, निरसन और परिवर्तन के रूप में, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने की जो शक्ति है, उस पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। What the language provided in class 5th, it is dictatorship on the name of majority। ये तो मेजॉरिटी के नाम पे डिक्टेटरशिप है। अगर यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का व्यू था तो फिर तो एक ही बात लिखते कि इस देश में चुनाव होगा और चुनाव में जो जीत के आएगा वो जैसे चाहे वैसे रूल करे। What it means? Though you have majority and when you are amending the constitution, the people of India cannot raise their voice because they have opportunity to raise their voice during vote। वो तो जब वोट होगा तो अपनी आवाज उठाएंगे बाई कॉन्स्टिट्यूशनल वे, अदरवाइज सोशल वायलेंस से तो जब चाहे तो शोर शराबा मचा ले। तो आपको अगर
समर्थन मिल गया उनका रूल करने का, तो उसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन को इरप्ट करने का, डिस्टर्ब करने का पावर आपको मिल गया? नो। सो आई थिंक दैट द टू clauses which have been already declared unconstitutional by the Supreme Court should be repealed from the text of Constitution. It shows the misuse of power of Parliament once. ये दर्शाते हैं कि भारत की संसद ने कभी अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया था, and even the Parliament didn't care about the object of the making of Constitution. And that is the fundamental right of citizens and person living in India. और यहां तक कि क्लास 4 में इन्होंने कहा कि संसद में जो भाग 3 में भी कुछ होगा उसको भी हम बर्बाद कर देंगे, उसमें भी संशोधन कर देंगे। भाई इन व्हाट डायरेक्शन? आप संशोधन कर देंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे? क्या आप संविधान में संशोधन करके लिख देंगे कि फला कम्युनिटी के लोगों को हम नागरिक नहीं मानेंगे? क्या आप लिख देंगे कि फला कम्युनिटी के लोगों को धर्म का अधिकार नहीं होगा? क्या आप ये लिख देंगे कि फला कम्युनिटी के लोगों को घूमने का अधिकार नहीं होगा? या क्या आप ये कह देंगे कि भारत के लोगों पर इस तरह के जुर्म ढाए जाएंगे और सुनवाई नहीं की जाएगी? क्या आप ये कह देंगे कि बिना अदालतों में सुनवाई के ही लोगों को सजाए मौत दे दी जाएगी? Then what kind of amendment you wanted to do? You want to do here? आपकी लैंग्वेज दर्शाती है कि आप पावर होल्ड करना चाहते थे, न कि सर्विस देना चाहते थे। So why Parliament of India is requested by me to repeal the clauses inserted once by the Parliament itself, and it proves daily that Parliament might misuse its power. संसद भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। बहुमत मिल गया तो उन्होंने जो चाहा वो डाल दिया। एक तो 5 साल के कार्यकाल में इतने संशोधन, देखिए 1971 में इलेक्शन होता है, देन आफ्टर इलेक्शन हुआ इस देश में 1977 में, जब इंदिरा गांधी करारी हार होती है। इस बीच में अगर हम इसे ही पहला मान लें, इट इज नॉट फर्स्ट नीदर इट इज लास्ट, 43rd अमेंडमेंट लास्ट है, अगर इसको हम पहला भी मान लें तो भी देखें कितने अमेंडमेंट हुए, 20 अमेंडमेंट्स हुए, 20 संशोधन कर दिया गया। एंड द 42nd amendment of Constitution is itself called as mini Constitution. It has been asked so many times in examinations. अपने आप में एक ही जो 42वां है उसको छोटा संविधान की संज्ञा दी जाती है। So now I would like to describe the history of Article 368. You have to make a chart here by one. First of all, you have to mention 2 cases, steps. आपको स्टेप लिखना है। स्टेप इस केस में क्या है, आर्टिकल 368 जैसे था वैसे ही इसको स्वीकार किया गया था। देयर आर 2 केसेस यू हैव टू इंसर्टेड, शंकरी प्रसाद वर्सेस, आप लिख लीजिएगा चार्ट में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961, एंड द अदर केस इज, ये शंकरी प्रसाद का केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961, एंड द सेकेंड केस इज, इसी के साथ दूसरा केस भी लिखना, 2 केस हैं यहाँ पे, एक ही तरह के व्यूज हैं दोनों में, दैट इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दोनों के दोनों ही एस से, ये 1961 है या 51 भी है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, आप चेक करेंगे, बट उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, इट्स 51।
बोथ हैव बीन पास्ड बाय गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप नोट कर रहे हो इस बात को कि 1951 1965 है, यानी कि आर्टिकल 368 में कोई दूसरा क्लॉज नहीं था, तो ओरिजिनल क्लॉज होंगे, आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में जो आज है। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट नॉट ओनली द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 बट द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेस्टेड इन पार्लियामेंट इन दिस आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि न केवल प्रक्रिया लिखी है बल्कि शक्ति भी दी गई है। बट लेटर ऑन द सेकेंड स्टेप, केस का नाम है ICJ गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी 1967। इंदिरा गांधी की सरकार तुरंत आई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 बट इट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 248 रेजिड्यूरी पावर ऑफ लॉ मेकिंग। अब जरा देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी पावर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ कहां कहां है। तो आप पावर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ अगर देखेंगे तो वो मिलेगा आपको आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 248। ये 246 किससे जुड़ जाएगा, ये इसके ड्यूट 7 से जाके जुड़ेगा। आर्टिकल 246 लिखता है कि यूनियन लिस्ट में जो बातें लिखी हैं उस पर यूनियन बनाएगा यानी पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो लिखा है उस पर स्टेट लिस्ट बनाएंगे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में सिलेक्ट बटन लिखे हैं उस पे हु विल मेक द लॉज, ईदर यूनियन और स्टेट बोथ आर अलाउड टू मेक द लॉज ऑन द सच मैटर प्रोवाइडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, बट द सब्जेक्ट मैटर व्हिच हैव nowhere been categorized are called as residuary। Article 268 make it clear that law making power on residuary matters, it means on the matter which have not been categorized any of the list of 7 schedule is vested in parliament in union। तो जो अन्य विषय है, अब जरा देखिए अनुच्छेद 246 जो 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, 7 शेड्यूल में subject matter as subject matter constitution amendment has not been categorized anywhere, neither in union list nor in state list nor concurrent list। संविधान संशोधन एक विषय के रूप में 7वीं अनुसूची में कहीं भी नहीं लिखा है। So it is residuary power, residuary matter and power to make law on residuary matter is vested in parliament, but whether power of making law on a specified matter or on residuary matter under article 246 or under article 248 these are general power of law making। ये विधि निर्माण के सामान्य शक्तियां हैं। तो फिर जो सामान्य शक्तियां वो क्या है, a law made by way of exercising power of article 246 or of 248 is subject matter of article 13 clause 2। इस शक्ति का प्रयोग करके जो कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 13(2) के अधीन होंगे, और अनुच्छेद 13(2) के अधीन होने का मतलब क्या है कि बाय वे ऑफ मेकिंग द लॉ बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 246 और 248 नो लॉ कैन बी अलाउड टू बी मेड एंड टू बी इफेक्टिव which violates the fundamental rights to whatever extent। इन शक्तियों का प्रयोग करके जो कानून बनाया जाएगा उन कानूनों के जरिए अगर मूल अधिकारों में कोई हस्तक्षेप होगा तो कानून शून्य हो जाएंगे मूल अधिकार के विरोध में होने पर। But if the
power to amend the constitution is not a general legislative powers. It means constitution by way of constitutional amendment. Even fundamental rights might be shifted, might be curtailed, might be repealed, might be minimized, might be confined. यानी अगर ये सामान्य शक्ति है तब तो सामान्य विधायन की शक्ति से मूल अधिकारों में छेड़खानी नहीं की जा सकती। Because आर्टिकल 13 क्लास 2 prohibits it, अनुच्छेद 13(2) मना करता है। लेकिन अगर ये विशेष विधायी शक्ति है संविधान में संशोधन करना, तो इसके जरिए संशोधन किया जा सकता है। सो द क्वेश्चन, अगर इन जजमेंट्स को मानेंगे तो पार्लियामेंट अलाउड हो जाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकारों को भी थोड़ा कम कर दे। लेकिन अगर इसको जनरल पावर कह देंगे तो आर्टिकल 13(2) अप्लाई हो जाएगा और तब संविधान में संशोधन करके भी, अगर संविधान संशोधन को सामान्य विधायी शक्ति मान लिया जाएगा तो सामान्य विधायी शक्ति से मूल अधिकारों में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, तो मूल अधिकारों में जरूरत पड़ने पर कोई नकारात्मक बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर था, यानी बहुत टेक्निकल मैटर। गोरखनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नो, there is no power to amend the constitution is vested in parliament by way of article 368. Article 368 just provides the procedure of to amend the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल प्रक्रिया दी गई, शक्ति दी नहीं गई है। And to amend the constitution is just general legislative power of parliament to amend the constitution under article 248 as legislative power of law making. विधि बनाने की अवशिष्ट विधायी शक्ति के रूप में सामान्य विधायी शक्ति है। एंड सो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is on fundamental rights by way of constitutional amendment even. और इस प्रकार संविधान में संशोधन करके भी भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों में कोई हस्तक्षेप संसद नहीं कर सकती। ओके, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बट टिल द जजमेंट इज पास्ड सेवरल टाइम्स सो मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड बाय पार्लियामेंट इन द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आई वुड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब द वैलिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट प्रीवियसली। आप जानते हैं कि पहला ही संविधान संशोधन में संपत्ति का मूल अधिकार कम किया गया था, यू नो इट वेरी वेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पहले संविधान संशोधन हुए हैं उन पर एक फर्क पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, केवल भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा हमारे जजमेंट का। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, इसको ओवर रूल किया गया। तो यहाँ क्या है, कॉन्ट्रेरी व्यू इसका है, और यहाँ तीसरा ओवर रूल, ये है 24th अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया, इसको ओवर रूल किया गया एंड क्लास 1 एंड क्लास 3 जोड़ा गया। किसमें, आर्टिकल 368। और एक क्लास जोड़ा गया आर्टिकल 13 में 13 में क्लास 4 जोड़ा गया। आर्टिकल 13 में क्लास 4 जोड़ के क्या लिखा गया कि बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अ लॉ इज नॉट included in term of law under article 13। कि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई जाएगी उसे अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं माना जाएगा, यानी कि वो ऐसी विधि बना देने से अगर संविधान के भाग 3 का उल्लंघन होगा तो उसे कोई जांच नहीं। आपको मैं पहले कर चुका हूं दोनों में क्या लिखा गया। देन तीसरा स्टेप क्या है, केशवानंद भारती केस। भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या होता है स्टेट ऑफ केरला के केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट दो बातें करता है। एक तो पहले तो इसको वैलिडिटी दे दिया, सॉरी अप्रूवल,
और इसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत मान लिया। सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड that the court was not at right track in the Golaknath case. Okay? Court itself retracted from its view expressed by the court in Golaknath's case. And at the same time, the court declares that 24th Amendment, through which Clause 1 and Clause 3 have been inserted in the Article 68, are constitutional. But another kind of restriction had been imposed by the Supreme Court in this judgment, and that was basic structure of Constitution. इसी केस में संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की गई। तो जरा देखिएगा, अब तक जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट यही कहा था कि आप संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में छेड़खानी नहीं करेंगे, यानी मूल अधिकारों को छोड़ के एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड एनी काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 68। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया हम गलत थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आप जहां चाहे वहां बदलाव कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैन नॉट बी अलाउड टू रीड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको भारत के संविधान को बर्बाद करने की इजाजत नहीं मिल पाएगी। बाय दिस वे कोर्ट एक्सटेंडेड इट्स पावर। क्यों? क्योंकि अब तक कोर्ट क्या करता, संविधान में किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13 के आधार पर ही चेक करता। अब आधारिक संरचना के आधार पर चेक करेगा। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, इट्स अप टू द कोर्ट टू डिसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट आज, अगर आज की जो पोजीशन है भारत में, सुप्रीम कोर्ट आज किसी संवैधानिक संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहे, तो जिस प्रोविजन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहा है, अमेंडमेंट कहां हो रहा है, कह देगा अमेंडिंग द प्रोविजन इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आधारिक संरचना से खिलवाड़ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। सो यहां जरा देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विजडम का यूज किया। पार्लियामेंट और कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था पावर खींचने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट यहां लीड किया, इनकी बात मान लिया कि ठीक है, आपने ऐसे जो कहा कि आपके संविधान संशोधन की शक्ति मूल अधिकारों से ऊपर है, यू आर राइट, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया भाई? यस, एब्सोल्युटली देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सम पैरामीटर्स, देयर आर सम कंट्रोल व्हिच आर डोमिनेंट टू द पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति से ऊपर है। कुछ न कुछ प्रतिबंध होंगे, लेकिन ऐसा कोई लिखित रूप में नहीं था, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 13 क्लास 2। अनुच्छेद 13(2) में ही था जो लिखित रूप में था, और कहीं लिखित नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आप अनुच्छेद 13(2) को देखेंगे तो आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा नहीं, वहां भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां भी कर लो, लेकिन फिर आप संविधान को बर्बाद नहीं करोगे। तो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट को डोमिनेंसी कहां मिल रही थी? On the name of protection of fundamental rights from exercise of power of amendment in the Constitution of Parliament। संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति से मूल अधिकारों को बचाने के नाम पर ही सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल रही थी, वहीं वो केवल बनाए गए कानूनों की विधिमान्यता जा सकता था। लेकिन अब तो उसने वो पावर अपनी दे दी इनको, और बेसिक स्ट्रक्चर का पैमाना लगा दिया। अब वो किसी भी संशोधन को जान सकता है। Then what was the fifth step? Passing of 42nd Amendment Act। इसके क्या किया गया? 368 में क्लास 4 एंड 5 जोड़े गए। ओके, 368 में क्लास 4 और 5 जोड़ करके इसको ओवररूल किया गया केशव भारती केस को, और कहा गया इट हैज बीन क्लेरिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट
by way of insertion of the two clauses, clause 4 and 5 of Article 368, what have been clarified that Parliament power to amend the Constitution is supreme, कि संसद की संविधान की संशोधन की शक्ति सर्वोच्च है, and it cannot be examined even in the basis of violation of or disturbance of basic principles of Constitution. और इसे संविधान के आधारभूत ढांचे के से खिलवाड़ के नाम पर भी इसकी व्याख्या, इसकी परीक्षा, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। Then the last step, it was Minerva Mills case. Minerva Mills versus Union of India 1980। हाँ, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि अब इस केस तक सरकार बदल चुकी है। 77 से 80 तक के बीच में सरकार बदल चुकी थी भारत में। तो मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द क्लास 4 and 5 इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित किया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट बी अलाउड टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नेम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की शक्ति के नाम पर संसद को संविधान को बर्बाद करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। इस नाते बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन पे रहेगा ही रहेगा। ये स्टेप्स आपने पढ़ लिया। अब हमको कुछ और बातें आपको बतानी है, which I will describe in third video on the provision of and the heading of Constitution Amendment in Constitution of India. Okay? संविधान में संशोधन के संबंध में कुछ और बात हम बताएंगे आपको, जो तीसरी वीडियो में होगी, which would be last one. ठीक है, वो तीसरी वीडियो संविधान संशोधन पर अंतिम वीडियो होगी। सो थैंक यू, एंजॉय दिस वीडियो। ओके।